یا چیزیں جو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے دوسروں سے متاثر ہو جائے. جب تک آپ کا علم جو ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا، تاریخ کا مکمل علم نہیں ہوگا تو آپ اگر دوسرے غلط نظریات کو پڑھیں گے تو آپ متاثر ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے، ہمارے آپ کے لحاظ سے یہ بالکل جو ہے توازن ہے. یہ پہلے جو ہے وہ اپنے نظریے کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھتا مسجد میں بیٹھتے تھے تو ہم لوگ چلے جاتے تھے، ایک صاحب آئے ایسے کہنے لگے کہ یہ جو تم فلاں صاحب کی کتابیں پڑھ رہے ہو تو تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ جب تم نے ابھی مکمل علم ادھر کا حاصل نہیں کیا ہے تو ادھر کا کیسے پتا چلے گا تم کو؟ تو پہلے جو ہے نا آپ کو پوری طرح جو ہے اپنا علم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے اگر یہ اس میں ادھورا پن ہوگا اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی ہوگی تو وہ جب کمی ہوگی تو فطرت جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ خلا کو پور کر دیتی، کھٹ سے اس میں آ کے بیٹھ جائے گی. وہ تو وہ خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا علم جو ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کا مطمع نظر ہے، وہ آپ کا جو ہے کلیئر ہونا چاہیے اور اس میں یقین ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ جو ہے بحث و گفتگو کریں وہ بحث و گفتگو جو ہے وہ معروضی انداز میں ہونا چاہیے، جس کو آبجیکٹیو اسٹڈیز بولتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ آپ یک طرفہ بولے جا رہے ہیں تو وہ جب آپ یک طرفہ بولیں گے تو سامنے والا بھی یک طرفہ بولنا شروع کر دے گا. تو وہ قدر مشترک جو چیز ہے وہ بیچ سے جو ہے وہ نکل جائے گی. تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیزیں چھوٹ جاتی ہے. جیسے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب آپ ابن اللہ پیغمبر کی جگہ رکھیں گے تو وہ استمبھ جو ہے ستون گر جاتا ہے. کیونکہ بیٹے سے جو ہے دوسروں کو بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے پیغمبر سے لینا ہوتا ہے. وہ ہدایتیں جو ہے وہاں سے ملتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. تو میں نے جو یہ دیکھیے یہ اپنے یہاں جو ہے خاص طور سے شیخ احمد صاحب سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں، اور مرزا مظہر جانے جان رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا مجموعہ ہے کلمات طیبات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے میں بھی اس پہ جو ہے وہ بحث ہے. تو آپ ان چیزیں کو دیکھیں کہ یہ جو ہے کون سی چیز جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے اور ہم کو جو ہے نا ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے. اب وہ چیزیں چونکہ ایک مشترک چیز ہے اور مشترک بنیاد کے حوالے سے ہی جو ہے آپ سامنے والے سے جو ہے وہ بات کریں گے. تو یہاں جو ہے انڈین فلسفی میں جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے. وہ کیا کیا ہے وہ جگہ سے ہٹا دیا ہے. وشنو کا وہ جو ہے وہ 10واں اوتار بتا دیا ہے، کلکی اوتار جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ نے جو ہے اس پہ کبھی غور کیا کہ قرآن میں جو ہے مختلف اقوام کا جو ہے ذکر ہے اور تمام قوموں پہ جو ہے عذاب آیا ہے. اب دنیا میں واحد قوم ہے براہمنوں کی جس پہ عذاب نہیں آیا ہے. کیوں؟ عذاب آنا چاہیے نا، اس پہ عذاب کیوں نہیں آیا ہے؟ سب قوموں پہ عذاب آیا، تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ قوم آج تک موجود ہے ہزاروں سال سے. کیوں؟ اور عذاب جو ہے وہ ہمیشہ آتا ہے گستاخی پہ، بدتمیزی پہ، گمراہی پہ عذاب جو ہے وہ نہیں آتا ہے. اگر وہ آدمی کسی کو بڑھا کے بول دے گا تو اس پہ عذاب نہیں آتا ہے. عذاب آتا ہے سرکشی پر، گستاخی پر. جو ہے یہ جتنی قوموں پہ عذاب آیا ہے سب جو ہے وہ سرکشی تمرد کی وجہ سے عذاب آیا ہے. اچھا اس قوم پہ اس لیے عذاب نے آیا کسی نے انکار ہی نہیں کیا، انہیں ریجیکٹ کیا. کر لے گئے پیغمبر حضرت محمد ہے، کر لے گئے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے اوتار ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں. لنگا چیدی شکاہ ناشم سلداری پدو کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تو جو ہے وہاں پیدا ہوں گے، وہ جو ہے مختون ہوں گے وہ، اور جو ہے وہ داڑھی رکھیں گے اور جو ہے وہ ٹیپ جو ہے وہ نہیں ہو
रखेंगे वो कर लेंगे, ठीक है हम मानते हैं वो, लेकिन उन्होंने उसको नबी नहीं माना, नबी की जगह से हटा दिया। अब वो जो है वो भगवान जो है वो उसी शक्ल में आ गया। तो जब भगवान जो उस शक्ल में आ गया तो भगवान जो है उनमें भी ये तर्क शास्त्र में लिखा है कि अगर ये क्षण के लिए अगर कोई भगवान नहीं रहेगा तो वो कभी भगवान नहीं रहेगा। भगवान जो होता है, खुदा जो होता है, उसका हमेशा जो खुदा होना जरूरी है। अगर वो जो है 2 4 10 साल 20 साल 15 साल 1000 साल भगवान नहीं रहेगा तो जो है वो कभी भगवान नहीं रहेगा। वो एक लम्हा एक क्षण भी अगर वो भगवान नहीं रहेगा, अगर वो भगवान है तो भगवान को पता होना चाहिए कि रावण जो है प्रोग्राम बना रहा है सीता के युवा का जो है, वो तो फौरन ये हो जाता। अब जो हिरण आया था सोने का बन के, रावण का मामू मारीच जो है, तो पता होना चाहिए था कि ये तो रावण का मामू है, हमको धोखा देने के लिए आया है, तो पीछे क्यों भागे वो। तो जब वो भगवान अवतार में आए तो उनको उसी तरह सब कुछ होना चाहिए ना, इल्म होना चाहिए, तमाम चीजों को इल्म मोहित होना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो नहीं है वो। तो अगर वो भगवान है तो मालूम क्यों नहीं है, तो वो सवाल जो है ना वो कट हो जाता है, जवाब नहीं मिलता है। तो जहां सवाल का जवाब नहीं मिले, या आप जो है उलझ जाते हैं, या आपके लिए अमल का कोई रास्ता नहीं खुलता है, या कोई न कोई सुकून गिर जाता है, या कोई न कोई सिलसिले खैर जो है वो टूट जाता है, तो समझिए कि वहां गड़बड़ी हुई है। इस्लाम वाहिद मजहब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नबी है, आखिरी नबी जो है, जहां आपको तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाता है। और वो यहां से सवाल चलता है 1 2 3 4 पे जाके आपको जवाब मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उपनिषद में ऋषि जो है ना वो प्रार्थना कर रहा है कि हमको झूठ से सच की तरफ ले चल, अष्टो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, और अंधेरे से उठा प्रकाश के लोक में ले चल। वो भी वही कह रहा है जो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पे चला। दुआ में जो है ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि वो आदमी दुआ मांगते हुए भी जो है वो समझ नहीं रहा कि जो है सीधा रास्ता क्या है। यहाँ आपको रास्ता मिल जाता है, और रास्ता तो 3 लोगों का रास्ता है वो भी मिल जाता है। वहां जो है ना आदर्श और आइडियल जो है गायब है, बात मौजूद है। तो जब बात मौजूद है तो सिर्फ जो है वो बात जो है ना मानने तक रह जाती है, और आपको करना भी है। तो जब करने का मामला है तो वो आप जो है वो हदबंदी कई चीजों का आपको रखना है, समझना, करना और कहना जो है। तो ये जो है ना जो मैंने बताया कि जो है मर्द औरत का ताल्लुक, जो ये जो एक तख्लीकी निज़ाम है, सर्जन प्रक्रिया जो है वो तख्लीकी निज़ाम जो है, ये जो चीजें जो चल रही है तो इस्लाम में भी है। अपने यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ये कहा दिया कि अगर कोई आदमी जो है बीवी से जो है वो सही नियत से मिलता है तभी सवाब मिलता है। तो ये अपने यहाँ जो है ना जो जिनसी फितरी ताल्लुक है, अगर वो सही ताल्लुक बना रहा है तो उसके सवाब मिल रहा है। तो अपने यहाँ जो वो जिनसी तस्वुर को जो है और उस अमल को रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ये फितरी चीज है। अब फितरी चीज को जो रिजेक्ट करेगा समझिए वहां गड़बड़ी है। तो हमारे यहाँ इसको रिजेक्ट नहीं किया है। बेटा बहू का, माँ बाप का, बहनोई का, बहन का, दोस्त का, सबके ताल्लुक के बारे में है। लेकिन ये जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है और जो समझने का मामला है उसको बाहर नहीं लाना है। इस समाज ने जो है ना वो जो समझने वाली बात थी उसको बाहर कर दिया, जो जहन में जो बात थी उसको बाहर कर दिया। जो अब जो है वो समझ रहा है वो तो वो फोटो लगा दिया जो बस स्टैंड पे जो है बहनोई और जो है वो बहन का फोटो लगा दिया जिनसे अमल करते हुए। जो अजंता एलोरा आप जाति इन लोगों ने क्या किया है, 84 तरीके से जिनसी अमल करते हुए दिखाया। तो जो चीज समझने की थी वो उसने करके दिखा दिया। तो ये जो चीज समझने की है उसको जब आप करके दिखाएंगे तो हम बेहयाई फैलेगी। आप जानते हैं कि ये होता है, लेकिन जब उसको आप चित्रण करेंगे, तस्वीर कशी करेंगे उसको, या मुजस्समे उसको मुंतकिल करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी।
تو یہ جو शिवलिंग है या जो है भग और लिंग जो है वो दोनों आपने जहां भी देखा होगा तो वो जो है ना वो जो इसी तरह की चीज रहती है, यहाँ पे ये रख दिया है तो वो आप देखेंगे हमेशा जो है वो शिवलिंग वहीं पे रहता है। तो ये जो है ये तखलीकी अमल जो है, सर्जन प्रक्रिया जो है वो जो समझने की चीज थी जो बिल्कुल जायज है, लेकिन उसको जब उसने बाहर कर दिया तो समाज में जो है वो अखलाकी अनारकी जो है पैदा हो गई। और इस्लाम ने ये नहीं किया, इस्लाम ने उससे रोका नहीं है, कहा कि ये तो फिक्री अमल है और समाज जो है चूंकि कयामत तक चलना है तो अगर इसको फिक्री अमल को रोक दिया जाएगा तो ये जो गलत हो जाएगा। तो जो आदमी जो है वो अलग हो गया औरत से, आप जो है बीवी नहीं की उसने, तो उसने खुद अपना इनकार कर दिया। अगर तुम्हारे बाप ने ही ये किया होता तो तुम कहां से आते? तो तुम अपनी तरदीद जो है वो खुद कर रहे हो कि जो मर्द औरत का, स्त्री पुरुष का जो संबंध है, जो मर्द औरत का ताल्लुक है, जो फिक्री है, उसको जब तुम रिजेक्ट करते हो और उस आधार पर तुम जो है जो सात्विक जो है गुण से जो जुड़ने की कोशिश करते हो कि तुम जो है बहुत बड़े जो मुकद्दस बन गए, फला फला हो गए, ये बिल्कुल झूठ है। अगर ये बात है तो तुम आए कहां से? तुम पे जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये जो गैर फिक्री चीजें हैं तो इस्लाम ने फितरत को भी रखा है, वसूल को भी रखा है, सवाल के जवाब को भी रखा है और जो सिलसिले खैर है वो सबको रखा है। तो इसको आप जो है ना अपने समाज में और जो बाहर का समाज है उसको आप फैलाते चले जाइए इस वसूल पे। और ये एक माकूली नजरिया है और ये जो है कदरे मुश्तरक जो है बुनियाद है जो दोनों तरफ है तर्क शास्त्र और इल्म कलाम में। तो ये तमाम चीजों को जो है वो सामने रखते हुए अगर आप जो है वो चीजों को समझेंगे तो वो जो है आप जो है इस मंजर को और जो है इस खित्ते को जो है सारी चीजों को जो है वो समझेंगे। और मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में इस खित्ते में सबसे बेहतर जो है काम करने का जो जरिया है वो है तसव्वुफ। इस समाज को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सूफिया ने समझा मौलाना, और सूफिया ही ने उसका जवाब फराहम किया। अगर सूफिया को और तसव्वुफ को आप इस जो है खित्ते से निकाल दें तो आपके लिए काम करना और समझना मुश्किल हो जाएगा, जवाब ही आप नहीं दे पाएंगे। यहां जो है दर्शन है और जो है यहाँ पे वेदांत है जिसको आप तसव्वुफ कहते हैं। अगर आपने दर्शन है, वेदांत यहाँ मौजूद है, और अगर आपने सूफिया को और तसव्वुफ को जो सही तसव्वुफ है अगर आपने उसको बाहर कर दिया तो वो ये खला पैदा हो जाएगा और वो जो है वो गलत जो है वहां जो है वो कब्जा कर लेगा। तो यहाँ आपको इधर से चलना है, उधर से समझना है, चलना है आपको इधर से। तो तभी आप जो इस खित्ते को समझ पाएंगे और इसमें कितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं और इसमें क्या क्या रहस्य है और पूरा असरारियत है। वो यहाँ का जो एक सिस्टम है, निजाम है, कुरान है, रज़मिया तहकीकात है, वैदिक निजाम है, उपनिषद है। तो मैंने उपनिषद जो है पढ़ा था, उपनिषद का मैंने जो एक श्लोक पढ़ा है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी गहराई और ऊंचाई है। लेकिन गहराई और ऊंचाई होते हुए उस आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको बीच में खड़ा होना है, मध्यम में, या जो ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इरादा जब आप उसमें शामिल करते हैं अपने अमल में तो जाएंगे किधर आप जो है, ऊपर या नीचे जो है। तो वहां आदमी जो फंस जाता है क्योंकि आइडियल नहीं है ऊपर जाने के लिए और गहराई में जाने के लिए। तो आदमी बीच में जो है वो त्रिशंकु होकर रह जाता है, मुअल्लक हो जाता है। वो मैं आपको कल बताऊंगा त्रिशंकु जो है वो इसको कहा जाता है। अभी ये चंद चीजों को आप जो है वो सामने रख के, अब ये चंद चीजें आप समझ गए तो फिर वो और बातें भी आपकी जो है समझ में इंशाअल्लाह सब आ जाएंगी। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी 8:30 बजे हजरत जी जी कल सुबह 8:30 बजे 9 बजे
9 बजे ٹھیک ہے بتائیے ارادہ شامل کرتا ہے اس میں سے راستہ تو کھلا ہوا ہے ہمارے لیے کتنے بجے آ جائیں گے 8:30 ہے نا میں نے حضرت مولانا سے یہ عرض کیا کیونکہ 4 نشستیں کرنی ہیں میں نے عرض یہ کیا تھا کل دن میں اگر 3 ہو جائیں پھر پرسوں سویرے 1 ہو جائے تو اس کے بعد جمعرات کو وہ بدھ کو ظہر کے بعد کا وقت مولانا کو خالی رہے گا کچھ سری نگر گھوم کے تب واپس تشریف لے جائیں اس لیے میں چاہتا تھا کل 3 ہو جائے